something about the worksheet, I would request Priyanka that if she allows me, I would like to talk worksheet of parenting. Priyanka, you're muted. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Please go on. Okay. So, if we have to understand what is a worksheet, the first thing that we need to understand is worksheet is nothing but it is a playground wherein we are creating a person, making a children to learn in a creative and a related play structures. And in today's episode of, the positive parenting, we are going to do a worksheet of parenting. And I'm sure by the end of this session, I'm going to talk about 9 steps, but at least 4 steps you will carry along with you because parenting doesn't come with a manual. So we understand that worksheets are very important, and because while children is studying and seem to be a core, whereas worksheets when Priyanka was showing about EWS, about English, mathematics, so they make a fun activity. Believe me, every one of us is interested when the things are in a fun activity because we are stress free. And there is a reason why worksheets are important. And we are going to create a worksheet of parenting for all of us. I am also going to be a part of it. So, first benefit of, I'm going to just talk about the benefit of worksheet. First of all, subtle learning. As mentioned, we learn without knowing what is happening. So that is what is happening in a worksheet. So it engages any person to participate. Especially to the kids, it engages to learn in a subtle manner. Second benefit of a worksheet is that you can do a logic building exercise. So by the virtue of the worksheets, what happens is you can teach children how to think. And believe me, critical thinking is one of the 21st century skills which is required. So logic builds up. And while Priyanka was mentioning about the psychometric assessment, when we help a child to actually learn about the career, to choose a career, believe me, logical ability is one thing that actually matters a lot. The best tool where we can help our children to learn how to think, that they build up the logic, they try to figure out the solution and answer it themselves without any guidance. And most important is it covers large coverage. Though it is having a fun full of work, the best part is that children would never feel like that they are studying because they feel like it is like a mix and match correctly. Similarly, see Kaun Banega Crorepati, we all know that has actually successfully completed so many reasons. And that is a toughest entry's job, but still people really enjoy while watching as well as while working on it because it is nothing but it is a live worksheet model that people out there. Whereas when a kid is working on a worksheet and parent is sitting with them, first of all, the gadget is kept away. It could be iPad, it could be phone or anything. Children enjoy coloring. They enjoy tearing, pasting, joining, puzzling. And believe me, the worksheets actually make you help onto it. And most they're going to explore on the concepts. So the gross motor skills, logical thinking, learning the things on their own. These things are actually gradually, the worksheets are worked out that they can portray on. And the fun part is the children, parents, every one of us enjoy. Even if something is, printable, either it is in a repetition, the students actually really enjoy on it. They are becoming a great source of entertainment as well as imparting the value education. Parent, your words and actions, they affect in developing their self-esteem. Yes, someone said be patient, be a good listener, but there are certain small gestures that you can do to boost your child's esteem. And one of the best gestures is praising their accomplishments. So rather than saying you're worthless, you are not doing anything good, you can be positive. The way you can do this thing, that choose your word very carefully and be compassionate, because at the end of the day,
वी आर नॉट डीलिंग विद अ नॉन लिविंग कमोडिटी, वी आर प्लेट होता है। सेम वही सिचुएशन होता है, हम पेरेंट्स के बच्चे सब चीजें अच्छे कर रहे होते हैं ना, हम उनको नहीं देखते, लेकिन किसी दिन उन्होंने कुछ गलत कर लिया ना, हम उसी चीज को पकड़ते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, मैं अपने बच्चे के साथ भी करती हूँ। सो वन थिंग दैट वी कैन डू इज कैच किड्स बीइंग गुड। तो अगर आप में से किसी के पास भी कोई एक टिप है जो आप लोग देना चाहेंगे, so please share it with the parents community, and we are doing a live worksheet, and I'm sure by end of this session हम सबको ही मजा आने वाला है। मैं हूँ, बच्चा जब छोटा है, जब क्रॉलिंग करना शुरू करता है तो आप वेरी गुड करके उसकी वीडियो बनाते हैं। जब चलना शुरू करता है, पहली बार मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, तो आप लोग वीडियो बनाते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आपका अटेंशन कम हो जाएगा और उसको वेरी गुड नहीं मिलेगा ना, वो सिकुड़ता जाएगा। तो ऑलवेज अप्रिशिएट योर चिल्ड्रन। नेहा मैम, यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी, मैं ये करूंगी कि हाँ, अप्रिशिएट योर चिल्ड्रन जब जरूरी हो। हर बार अगर आप अप्रिशिएट करने लोगे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली आपका बॉस आपको हर बार नहीं अप्रिशिएट करता है, राइट? आपके हस्बैंड रोज आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपकी वाइफ रोज अप्रिशिएट नहीं करती, ठीक है? फिर भी हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तब भी वी लिव विद इट। सेम इज विद पेरेंटिंग। हमें बच्चों को ये बताना जरूरी है कि अप्रिसिएशन इज गुड, ठीक है? तो सेकेंड एक्सरसाइज दैट वी हैव डन इज कैच किड्स बीइंग। थर्ड चीज जो हम बात करें, सेट लिमिट्स, बी कंसिस्टेंट विद योर डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डिसिप्लिन बना रखा है, बच्चा उठते ही अपना बेड बनाएगा, तो यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट अबाउट इट। आप ऐसे नहीं कर सकते एक दिन आपने डिसिप्लिन किया, दूसरे दिन डिसिप्लिन नहीं किया। तो यहाँ पे सबसे पहले एज पेरेंट्स हमें एक हाउस के रूल्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आप एज ए लेडी रूल्स बनाती हैं तो ये रूल्स सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे, भले ही आपके घर में आपके फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, आपके हस्बैंड हो। सो एज विद हस्बैंड, अगर आप ये रूल्स बनाते हैं सबके लिए होंगे वो रूल्स, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होंगे। सबको पता, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हर बंदा एक एक काम कर रहा है उसके अंदर, सो दैट नो वन इज लूजिंग देयर प्रिविलेजेस। आप टीवी के लिए रूल बना सकते हो, होमवर्क के लिए रूल बना सकते हो, नेम कॉलिंग के लिए रूल बना सकते हो कि कोई नाम से अपने भाई बहनों को नहीं चिढ़ाएगा, कोई हर्टफुल टीजिंग नहीं करेगा। आप ऐसे छोटे रूल्स आप बना सकते हैं। यस, दिस इज अ रियल गुड थिंग कि आपने कपड़े उतारे, स्कूल से आए, कपड़े रखे। ऑलवेज बी से पॉजिटिव। यस, दिस इज समथिंग दैट इज अ रियल पॉजिटिव पेरेंटिंग, बिकॉज आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं। यस, व्हाट एल्स? शिवांगी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। अनीश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। कीप यूटेंसिल्स इन प्लेस। अनीश जी, बहुत अच्छा रूल है ये कि हमें जो है अपने बर्तन सही जगह से निकालने चाहिए, सही जगह रखने चाहिए। बेड करो, मैंने अपने घर में रूल बना रखा है कि आप बाहर से आओगे, जूते उतारोगे और जूता जूते शेल्फ में जाएगा, बाहर नहीं रखा रहेगा, ठीक है? छोटा सा है कि बेड से उठोगे, बेड बनाओगे। कीप प्लेइंग द टॉयज इन द प्लेस। यस, ये बहुत अच्छा आपने नित्या जी बोला कि आप जो है खेलो लेकिन अपने टॉयज को वापस रखो। हेल्पिंग एंड शेयरिंग विद अदर्स। रश्मि जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वैल्यूएबल थिंग, बिकॉज अगर हम अभी केयरिंग नहीं दिखाएंगे तब हम आगे नहीं चल पाएंगे। So we have learned 3 things as of now, and I would request all the parents to write, because we are doing it in a worksheet mode. So first thing we spoke about boosting your child's self-esteem. Second thing we spoke about catch kids being good, and third thing is set limits and be consistent with your discipline. Is there anything that anyone would like to comment right now, or shall I move on to the next tip? Okay, so let me move to the next tip. Make time for your kids. ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि आप अपने एज अ पेरेंट, मेनी ऑफ द पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है जब हम बच्चों के साथ होते हैं। सो क्रिएट अ स्पेशल नाइट। कभी आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है तो इंश्योर दैट यू गो, भले ही आप चाट खाने जाओ, आप छोटा सा कोल्ड ड्रिंक पीने बाहर जाओ, या मूवी देखिए। आजकल तो कोरोना की वजह से हम ये चीज नहीं कर सकते। इंश्योर दैट यू क्रिएट अ स्पेशल नाइट सो दैट every one of you are together. Look, school से आए, कपड़े रखे, always be say positive. Yes, this is something that is a real positive parenting, because आप positive बात कर रहे हैं। Yes, what else? शिवांगी जी, thank you so much
for your comment. Anish ji, thank you so much for your comments. Keep utensils in place. Anish ji, बहुत अच्छा रूल है ये कि हमें जो है अपने बर्तन सही जगह से निकालने चाहिए, सही जगह रखने चाहिए. बेड करो. मैंने अपने घर में रूल बना रखा है कि आप बाहर से आओगे, जूते उतारोगे और जूता जूते शेल्फ में जाएगा, बाहर नहीं रखा रहेगा. ठीक है. छोटा सा है कि बेड से उठोगे, बेड बनाओ. कीप प्लेइंग द टॉयज इन द प्लेस. यस, ये बहुत अच्छा आपने नित्या जी बोला कि आप जो है खेलो लेकिन अपने टॉयज को वापस रखो. हेल्पिंग एंड शेयरिंग विद अदर्स. रश्मि जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वैल्यूएबल थिंग. बिकॉज अगर हम अभी केयरिंग नहीं दिखाएंगे तब हम आगे नहीं चल पाएंगे. So we have learned 3 things as of now, and I would request all the parents to write because we are doing it in a worksheet mode. So first thing we spoke about boosting your child's self-esteem. Second thing we spoke about catch kids being good. And third thing is set limits and be consistent with your discipline. Is there anything that anyone would like to comment right now, or shall I move on to the next step? Okay, so let me move to the next step. Make time for your kids. ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि आप अपने एज अ पेरेंट, मेनी ऑफ द पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है जब हम बच्चों के साथ होते हैं. सो क्रिएट अ स्पेशल नाइट. कभी आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है तो इंश्योर दैट यू गो. भले ही आप चाट खाने जाओ, आप छोटा सा कोल्ड ड्रिंक पीने बाहर जाओ, या मूवी देखिए. आजकल तो कोरोना की वजह से हम ये चीज नहीं कर सकते. इंश्योर दैट यू क्रिएट अ स्पेशल नाइट सो दैट every one of you are together. Look at the other's way. Put something special in your kids lunch box. जब आप खाना बनाते हो, आपको मालूम है आपके बच्चे को कोई स्पेशल चीज पसंद है, या एक चॉकलेट रखो, so that everyone catches attention. जब मेरी नई नई शादी हुई थी, I used to ensure कि मैं लंच बॉक्स में रोज एक छोटा सा कमेंट रखूं अपने हस्बैंड के लिए, so that by the time लंच टाइम में वो खोलें तो he would feel good कि कुछ स्पेशल है आज के दिन में. ठीक है. सो सिमिलरली एज पेरेंट्स आप छोटी छोटी चीजें स्पेशल कर सकते हो. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हियर टू प्लीज राइट कि आप अपने बच्चे को कैसे स्पेशल फील कराते हो, या आप अपने स्पाउस को कैसे स्पेशल फील कराते हो विद अ स्मॉल जेस्चर. यस, कम ऑन Aranya, keep things in their places. Everyday reading habit. That's a rare good thing that you have done doing, because reading habit हम धीरे धीरे बच्चों में से निकल रहे हैं. Yes, ma'am. Every one of the parents, I would like to know that how are you making your kids time, और कैसे आप अपने बच्चों को फील कराते हो कि they are special. जॉब करते हैं हम लोग, हमें बहुत गिल्टी फील होता है कि हम लेट आते हैं. लेट आने के बाद ऑफिस में बॉस से चिक चिक हो गई, किसी पेयर से चिक चिक हो गई, तो आके मूड खराब होता है. कहीं ना कहीं घर वालों पे वो निकल जाता है. हमें मालूम है ये गलत है, लेकिन फिर भी हम अनजाने में करते हैं. आप क्या करते हो ऐसा? उनकी पसंद के फूड बना के. यस धारिया जी, आपने बहुत सही बोला. बच्चों की पसंद का फूड बना के आप कर सकते हो, और किस और तरीके से आप स्पेशल फील कराते हो. ओकेजनली प्लेइंग विद किड्स. आई वुड नॉट से ओकेजनली, रोज के लिए बच्चे के साथ भले ही आधा घंटा के लिए खेलिए. मैं थक के हार के आती हूँ, हालांकि मुझे कभी कभार टीवी देखने का मूड नहीं करता, लेकिन आई इंश्योर दैट विद माय टीनेज चाइल्ड आई सी एटलीस्ट हाफ एन आवर. द वे व्हेन वी सी द सेम थिंग टुगेदर इन अ डे, इट शोज हिम और हर एन इम्पोर्टेंस कि मम्मा पापा हमारे लिए कुछ करते हैं. राइट समथिंग गुड फॉर माई ग्रोन अप डॉटर. यस, लिसनिंग एंड फॉलोइंग देयर आइडियाज. यस पूनम जी, ये बहुत सही बात बोली आपने कि अगर हम उनकी बात सुनते हैं, उनके आइडिया को सुनते हैं, बिलीव मी कई बार हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनके आइडियाज में आ जाता है. तो प्लीज मेक श्योर एज अ पेरेंट वी इंश्योर दैट वी आर मेकिंग टाइम फॉर आवर किड्स, नॉट ओनली फॉर किड्स, इवन फॉर द स्पाउस. बिकॉज आजकल की दुनिया में सिर्फ यही एक चीज है जो हम बिना पैसों के दे सकते हैं. अदरवाइज हर चीज पैसों के साथ हो जाती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी अ गुड रोल मॉडल. अगर आप अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं, so you have to give respect, you have to be friendly, you have to be honest, you have to be kind, you have to be tolerant. जो आप exhibit करोगे behavior, बच्चा वही behavior exhibit करेगा. Here again I would like to welcome all the views.
from the people who are watching us right now that what do you do that you are becoming a role model to your kids. सरिता जी, मुझे आपसे कोई भी कमेंट नहीं आया है, मुझे एक कमेंट आपसे चाहिए. योगिता जी, सेम आपसे भी. नित्या जी, आपसे भी मुझे एक कमेंट चाहिए so that I'll understand that yes, you are listening to me carefully. उषा जी ने बहुत अच्छा बोला, we eat meals together and share our thoughts with an open mind. Yes, the family which eats together, prays together, they are really because हम सब चीजें इकट्ठे कर रहे हैं. आदित्य ली ने कहा कि respect elders and love to young ones, hand wash. Yes, this is something that we are really doing good. Hand wash, folding clothes, making the beds, keeping the things neat, and corona protection में जो भी rules हैं वो सारी चीजें. बहुत अच्छा बोला आपने आदित्य. I would like to have more things. Yes, Priyanka, become supportive and parent during the online schooling is something that we are really doing. And here I would like to come back to the topic कि आप जब बच्चा क्लासरूम ऑनलाइन ले रहा है उसके अंदर हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं. अब आप पेरेंट्स का, हमने पेरेंटिंग टिप्स बोला, बी फ्लेक्सिबल, एडजस्ट, और आप कैसे कर सकते हो, शो दैट यू लव, योर लव इज अनकंडीशनल, यू डिड नो व्हाट आर योर नीड्स ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द पेरेंट्स. इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है कि आज के दिन में सब लोग बोर हो गए हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और अभी के दिन में एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एक्चुअली गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द स्कूल. बच्चा वो चीजें नहीं कर पा रहा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अभी जो लोग आप लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, आप कैसे अपने बच्चे को सपोर्ट दिखाते हैं ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस. अगर आप उसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखना चाहें so that even I can open my Pandora box and I can share some of the tips that how can you become. There are only 5 ways that you can do, and we would learn those 5 things by the end of this session. Yes, can I have comments कि आप कैसे एक सपोर्टिव पेरेंट्स करते हो, बनते हो. Okay, let me open up my thoughts and I would listen to you. Ma'am, okay, please talk about working parent. I am in a bank and it is very difficult for me to attend the online classes. Aditji, this is a problem with everyone. Yes, no parent is supposed to be learning an online class with the kid. It's the teacher who is taking care of the online thing. But as parent, हम सिर्फ छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जो कि रिमोट लर्निंग को हम बढ़ावा दे सकते हैं. We all are working. I am working, so as you, and I'm sure some of the parents would also have a second child to be taken care of. So parents can, first thing they can do is motivate by taking an interest. That means जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के क्लास अटेंड करें. एक चीज ये भी कर सकते हैं, पेरेंट को जरूरी नहीं है कि फिजिकली वो अटेंड करें क्लास, लेकिन क्लास होने के बाद हम ये तो चीज कर सकते हैं कि आप वर्बली एक आउटकम को पूछे, बेटा आज क्या सीखा, क्या लर्निंग आउटकम था, क्या एक्टिविटी कराई, क्या बेनिफिट हुआ. तो अगर आप एज अ पेरेंट ये भी चीज कर सकते हैं तो भी बहुत बड़ी चीज है. अनमोल जी, आपने बहुत अच्छी चीज लिखी, टेकिंग एवरीडे फीडबैक अबाउट द ऑनलाइन क्लास. आई मस्ट एक्चुअली अपलोड यू बिकॉज दैट इज वन ऑफ द पेरेंटिंग टीम टिप दैट यू कैन गिव टू ऑल द फेलो पेरेंट्स. जरूरी नहीं है कि अगर आपको सपोर्ट दिखाना है तो आपको उसके साथ ही बैठना है. हो सकता है बच्चा ऑकवर्ड फील करेगा जब आप उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, लेकिन क्लास खत्म होते ही अगर आप उसको ये तारीफ करें कि मुझे बहुत अच्छा लगा that you were sitting very engagingly in the classroom, your body language was very good, I can see you're chatting to the teacher and asking the questions, और क्या रहा आपके फीडबैक में, so then you can actually really do a great thing by motivating, by taking the interest. You don't need to be there with the child at that time, but in case if you're motivating your child that he is taking an interest and you're encouraging him, then that makes a lot is an environment. So we can help our kids to organize the home learning environment. That means कई बार क्या होता है, वो अपने स्कूल के होमवर्क को नहीं कर पाते हैं होमवर्क एनवायरनमेंट में
क्योंकि लेस स्ट्रक्चर्ड होता है. आपके ड्राइंग रूम में बच्चा कर रहा होता है, बेडरूम में बैठ के कर रहा होता है, आई लेवल उसको फोन के साथ जरूरी होता है. टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस हैं, वो सब चीजें हैं. आपका घर का स्ट्रेस भी होगा. तो वन थिंग दैट यू कैन डू इज क्रिएट अ स्मॉल स्पेस जो बच्चे का वर्क स्टेशन स्पेस कर सकते हैं. सो हेल्प स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज द होम लर्निंग एनवायरनमेंट. एक एनवायरनमेंट दो, एक ऑर्गेनाइज करो आप लोग जहाँ पे बच्चा बैठ के अपनी क्लासेस को ले सके. सो दैट थ्रू द फॉस्टरिंग ऑफ द फैमिली रूटीन्स, मतलब बच्चा अपनी लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके, अपने प्रेफरेंसेस को ले सके, अपने रिक्रिएशनल चीज को ले सके. हमें मालूम है कि वो घर से पढ़ रहा है, तो हमें हर बार उसके सर पे नहीं खड़ा होना है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, आपको समझ आ गया या नहीं आया. जैसे आप एक स्कूल के एनवायरनमेंट में करते हो ना, कि बंदे को कैसे, आपको बच्चे को आप आने के बाद स्कूल में पूछते हो, वैसे ही आप अपने बच्चों से भी बात करो. दिस इज ऑफर एन इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट. ऑल्दो बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होते, बट व्हाट यू कैन डू इज पेरेंटल इंस्ट्रक्शन सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लाइक कोई असाइनमेंट मिला है या किसी भी चीज में मिला है, तो दे कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू नेविगेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन. जो टेक्निकल ट्रबल शूटिंग होती है, वहाँ पेरेंट्स आप हेल्प कर सकते हैं. एक क्वेश्चन आया था कि आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, तो आप बच्चे को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं. शाम को आने के बाद एक इनफॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाइए. थोड़ी देर घर में आप सबके साथ बैठिए, आप अपने वाइफ के साथ बैठिए, बच्चों के साथ इकट्ठे बैठिए, एंड इंश्योर दैट यू डीब्रीफ व्हाट हैज हैपेंड इन योर ऑफिस. कि आज ऐसा हुआ, आज ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ. आप एक स्टोरी वे में मेथड में आप, ऑल आई वुड लाइक टू से इज पेरेंटिंग इज हैविंग नो मैनुअल. Though there are multiple people who write everything about parenting, but every parent is a different, unique person, so as your child. So you cannot have one size fitting to any one of you. So you could be a good parent, you could be over good parent, you could be over good parent. Parent is never bad. So that is first thing. In case if any child is listening to me, I would like to tell you that every parent wants to ensure that the kid is having a complete, care until the person starts earning. Even if you are 70 years, for your parent, you are a child only. So as our children are always our children for us, no matter they have grown up, they are married, they are having kids, but still they will be our kids as well.